Hello, friends. How are you? I hope you'll be safe and sound. And welcome back to another exciting video of spotting errors and rectification of sentences. I am Ravi, your verbal ability and soft skill trainer. And today, in this video, we will learn about different kinds of sentences that we generally use in our day to day life, but we often tend to make mistakes when we speak. Okay, so we'll try to find out the error part, okay, in our general speaking, and we will see the actual sentence or the correct form of the sentence. So not taking much of your time, okay, let's start with the video and let's try to get the concept of those errors that we often tend to make mistakes in our normal day-to-day life. Now, before starting the video, one very small thing I would like to share with you is that when we learn these things, when we learn English, when we learn to speak with people, there are certain words which we use, but we actually don't know how it should be used and when it should be used. Sometimes we use redundant words which are not required, that also they are there. तो कभी कभी हम लोग जब बोलते हैं किसी सेंटेंस को, तो हम लोग उसमें कई बार ऐसी चीजों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ऐसी चीजों को एंगेज कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, या बहुत बार हमने किसी और से सेंटेंस को सुना होता है और उसको हम खुद से बोलना चाहते हैं, ठीक है, खुद से बोल रहे होते हैं, तो भी एरर होता है बिना ये सोचे समझे कि क्या जो हमने सुना है वो सही है या नहीं सही है। तो आज हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस देखेंगे और जो हम डेली यूज करते हैं अपने लाइफ में, एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन दैट, कि व्हाट इज द मिस्टेक। लेट्स सी। सो नाउ, स्पॉटिंग द एरर, दिस इज द सेंटेंस और इसके नीचे मैंने करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। सो वी विल डिस्कस व्हाई द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट एंड विल try to figure it out the actual way of speaking it. We are going to attend a marriage. Okay, so here if I say we are going to attend a marriage, it is a wrong sentence. Why this sentence is wrong? The right sentence is we are going to attend a wedding. Now, what is the difference between marriage and wedding? See, marriage is a relationship where two people tie knots with each other and get into a particular kind of relationship for lifetime. But wedding is a ceremony which is performed. So we never say that we are going to attend a marriage. We are not going to attend any relationship. We are going to attend the ceremony that is being performed. Okay, the rituals that is being performed. So here, instead of using marriage, we should use what? Wedding. बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना happy marriage anniversary. It's a wrong saying. We should never say happy marriage anniversary. You should always say happy wedding anniversary. So this is the right way to deal with it, okay, to deal with the sentences like this. Next देख लेते हैं, एक और sentence है, me and my friends went for the movie. This is incorrect sentence. Okay, now the correct one is me and my friends and I went for the movie. Now why the sentence is wrong? Me and my friends, क्या गलत है इसमें? जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहां जो मी है वो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई का मी हो जाता है, राइट। आई इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी इज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आता है, हमेशा subjective pronoun आता है. So me should not be placed at the beginning of the sentence. This is the reason why this entire sentence is wrong. Me and my friends went for a also, जब हम अपने बारे में किसी को बताते हैं या और उसके साथ कुछ और लोगों के बारे में बताते हैं, जैसे अपने बारे में अपने फ्रेंड्स के बारे में बोल रहे हैं, तो हम हमेशा अपने आप को एंड में बताते हैं, अपने बारे में एंड में बताते हैं, तभी हम कहते हैं माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट फॉर द मूवी। ठीक है, सो यहां माई फ्रेंड्स हो जाएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद हम अपने बारे में बताएं एंड आई वेंट फॉर द मूवी। सो दिस इज द राइट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज यहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये पहले नहीं आएगा, और चूंकि माई फ्रेंड्स है ये पहले आएगा और हम अपने बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में बताएंगे। सो द राइट फॉर्म इज माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट फॉर द मूवी इज द right form of the sentence. So these are small things which we need to take care of when we speak in our day to day life. जैसे अगर मैं अपने 3 दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूं, अजय, राहुल एंड आई वेंट फॉर अ मूवी,
तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे कि आई अजय एंड राहुल वेंट फॉर द मूवी। वी ऑलवेज स्पीक एट द एंड अबाउट आवरसेल्फ, हम हमेशा अपने लास्ट में अपने आप को बताते हैं, दोस्तों के बारे में पहले, ठीक है, या जिनके बारे में बोलना है पहले। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो कभी भी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आएगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई नीड टू आस्क टू माई बॉस, इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट वर्जन क्या है? आई नीड टू आस्क माई बॉस, मुझे अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। सो वी शुड नेवर यूज टू, हियर टू इज रिडंडेंट, आस्क टू माई बॉस इज नॉट द राइट सेंटेंस, टू इज रिडंडेंट, वी शुड नॉट, आस्क टू नहीं होता है, आस्क माई बॉस होता है। आई नीड टू आस्क माई बॉस, मुझे अपने बॉस से पूछना होगा, राइट। सो रिडंडेंटली टू हैज बीन यूज्ड इन द अबव सेंटेंस, so that is why we will not take it into account. Now the second thing is, I passed my time reading books. You never pass a time, you always spend a time, right? हम लोग टाइम को क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज, आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग बुक्स, मैं अपने टाइम को क्या करता हूं? स्पेंड करता हूं। किस तरीके से? बुक्स को रीड करते हुए। तो पास टाइम हम लोग बोलते हैं, बहुत बार बोलचाल की भाषा में हम लोग ये बातें बोल देते हैं कि मैं अपना टाइम पास कर रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं, बट एक्चुअल में टाइम पास नहीं होता है, ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग सेइंग, ये सेंटेंस ही गलत है। हाउ वी ऑलवेज स्पेंड आवर टाइम, हम क्या करते हैं? अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। स्पेंड मतलब खर्च करना या व्यतीत करना, ठीक है। तो हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, वी ऑलवेज स्पेंड आवर टाइम, एंड सो दिस वुड बी द राइट वन, आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग बुक्स, मैं अपना समय किताबों को पढ़ते हुए स्पेंड करता हूं, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ हियर इट सेज, आई हैव 3 चिल्ड्रंस, I have 3 children is a wrong part. The right is I have 3 children. See, children or children's क्या difference है? Children is already a plural form of child. Child का plural form क्या होता है? Children. ठीक है, तो जब हम यहां बात करें प्लूरल फॉर्म की, ये चूंकि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, तो दोबारा एस लगने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, right friends? So the right form of the sentence would be I have 3 children, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। So children is a wrong word. Children itself is a plural, so that is why s should not be used with it. Now the right sentence is I have 3 children. Next देख लेते हैं, he has 2 pairs of shoes. Wrong sentence है, he has 2 pair of shoes. Pairs का मतलब ही होता है 2 जोड़ा, ठीक है। तो हमेशा जब हम जोड़े की बात करते हैं तो एक की बात करते हैं, पेयर्स नहीं कहते हैं। 2 pairs नहीं हो सकता, 2 pair ऑलवेज, पेयर itself is a combination of 2 things, right? So we never use s, pair is a itself, it's a plural thing. अगेन यहाँ पे हम यूज एस नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही हैज 2 pair of shoes, ठीक है, उसके पास 2 जोड़ी जूते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राहुल ब्रोक माई क्रॉकरीज is an incorrect statement. Okay, we often use he broke my crockeries. It's a wrong statement. Crockery, Rahul broke my crockery. उसने मेरे बर्तन, राहुल ने मेरे बर्तन क्या किए? तोड़ दिए। तो क्रॉकरीज जो है वर्ड सही नहीं है, यहाँ पे क्रॉकरी जो है वो प्लूरल ही यूज होगा, ठीक है। बहुत सारे बर्तन जो सेट होते हैं उनको हम क्रॉकरी बोलते हैं। तो बहुत सारे बर्तन के सेट को जब आप क्रॉकरी बोल रहे हैं तो उसमें एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इटसेल्फ प्लूरल में आ जाता है। So that is why the former part, the first part of the sentence is wrong because we are using IES. Plural form use नहीं होगा। राहुल broke my crockery means राहुल ने मेरे बर्तन तोड़ दिए। बहुत सारे बर्तन थे, उसने मेरे बर्तन तोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, I have 2 sister-in-laws. Incorrect sentence again. What is the right one? I have 2 sister-in-law. सिस्टर इन लॉज कभी भी नहीं होता है। सिस्टर, जब आपने टू लगा दिया तो सिस्टर इन लॉज कभी नहीं होगा, लॉज कभी होता ही नहीं है। इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, एस नहीं। सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि इसको ऑलरेडी आपने डिनोट कर दिया है नंबर से, 2 3 4 5, हाउ मेनी? 2। सो यू नीड नॉट पुट एस इनटू इट, एंड ऑल्सो since this word does not, is it should not be with s or es, should not be followed by s or es,
in a plural form. So that is why it is inappropriate to use laws here. I have two sister-in-law, right? Now, so there are so many sentences in our daily life that we speak often incorrect, but we tend to think that whatever we have heard or whatever somebody has said is right or maybe right. So we keep on saying those sentences, keep on repeating without actually confirming or verifying whether the sentence is right or wrong. Okay, now let's see another pair of sentences. A lady doctor has been sent for. A lady doctor has been sent for is an incorrect statement. Okay, lady doctor is a incorrect statement. Now what is the correct statement? A women doctor has been sent for. Now what is the difference between lady and women? We need to understand इन दोनों के बीच में difference क्या है, lady doctor और women doctor. Any guesses? Yes, that's right. Lady word is used for a female person with high social or moral values. जिनकी सोशल वैल्यू ज्यादा होती है, डिग्निटरीज होती हैं, उनके लिए हम लेडी यूज करते हैं. ओके, बट यहाँ पे जेंडर डिफाइन करना है डॉक्टर का कि कौन से डॉक्टर गए, मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर. तो जब हम जेंडर डिफाइन करते हैं तो हम विमेन यूज करेंगे, नॉट द लेडी. लेडी इज नॉट appropriate word to define a gender. Okay, we should always use the gender defining words. So men, women, these are gender defining words. That is why we will use a women doctor has been sent for. विमेन डॉक्टर जो है उसको बुलाया गया है, राइट. सो नेक्स्ट देखते हैं. द रीजन आई रिजाइंड इज बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब. ओके, नाउ दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब. The reason I resigned is that I was not prepared for the job. Or I resigned because I was not prepared is the right statement. Okay, we never say that I was not prepared for the job. This is not an interview that you're going to prepare for or some kind of test or examination. You are not prepared. प्रिपेयर आप नहीं थे, इस वजह से आपने रिजाइन किया. तो इसके दो फॉर्म हो सकते हैं. पहला है द रीजन आई रिजाइंड इज दैट बिकॉज यहां पे नहीं होगा. The reason why because यहाँ पे क्यों नहीं? The reason I resigned, I was not prepared for the job. Because I was not prepared for the job नहीं होगा. The reason I resigned is that, किस वजह से आपने रिजाइन किया, किस वजह से आपने रिजाइन किया? I was not prepared for the job. क्योंकि आप जॉब के लिए रेडी नहीं थे. सो यहाँ बिकॉज नहीं होगा, या अगर हम बिकॉज लगाते हैं तो उसके लिए कोई दूसरा सेंटेंस हो जाएगा. द रीजन आई रिजाइंड बिकॉज, मैंने रिजाइन किया क्यों? बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जॉब. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मैं जॉब के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, इस वजह से मैंने रिजाइन किया. सो दैट इज द फॉल्ट इन द सेंटेंस. आई होप कि यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. एंड इस तरह के सेंटेंसेस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इसके पीछे लॉजिक या रीजनिंग देखनी होती है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस इज नॉट डूइंग गुड, और इट्स काइंड ऑफ साउंडिंग ऑकवर्ड और something wrong, right? So we need to tend to see the kind of sentence and the technicality where it should be put in a correct order. Let's see another sentence. If I say I am giving the exam, it is a wrong sentence. You never give, you always take the exam. हम लोग एग्जाम लेते हैं, देते नहीं. एग्जाम देने थोड़ी जाते हैं हम लोग, एग्जाम लेने जाते हैं. ठीक है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, ले रहा हूं एग्जाम. सो यू नेवर गिव द एग्जाम, यू ऑलवेज टेक द एग्जाम. आप एग्जाम लेते हो, ठीक है, आप लिखते हो ना पेपर या देते हो किसी को, नहीं. सो दिस इज नॉट द गिविंग एग्जामिनेशन. अक्सर हम लोग इसको मिसयूज करते हैं इस चीज को. अक्सर आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम और आई एम गोइंग टू गिव द टेस्ट. नो, आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम, राइट? सो दिस शुड बी द राइट और प्रॉपर वे ऑफ सेइंग इट. नेक्स्ट अगर हम देखें, शी रन्स फास्टली. देखिए ये जो एडजेक्टिव है ना और एडवर्ब, शी रन्स फास्टली, शी रन्स फास्टली, फास्टली ly लग गया तो इसके हिसाब से एडवर्ब होना चाहिए. मगर इंग्लिश में फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता. देयर इज नो वर्ड कॉल्ड फास्टली इन इंग्लिश. ओके, फास्ट का एडवर्ब फॉर्म भी फास्ट ही होता है. ओके, रन को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एडवर्ब होगा. ओके,
तो फास्ट का एडवर्ब फॉर्म भी फास्ट ही होता है. फास्टली इज अ wrong word, it should not be used. So instead of saying she runs fastly or the car is moving fastly, we say that she runs fast or the car moves fast. Right? So fastly is no word in English language. Next देखते हैं. She was late for the school and punished by her teacher. Hmm. She was late for school and punished by her teacher. There's something missing in the first sentence if you see. Helping verb is missing. Right? She was late for and punished by a teacher. यहाँ पे proper sense नहीं बन रहा है. Now when you put it like this, she was late for the school and was punished by the teacher. वो लेट थी स्कूल के लिए और इसकी वजह से उसको क्या हुआ, पनिश किया गया. देन इट मेक्स अ प्रॉपर सेंस एज टू व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. राइट. सो हियर वॉज इज, यहां पे जो है ये वॉज जो है ये मिसिंग है, जिसकी वजह से, हेल्पिंग वर्ब की वजह से ये सेंटेंस इनएप्रोप्रिएट हो रहा है. राइट. नाउ व्हेन यू यूज दिस, एंड वाज पनिश्ड बाय अ टीचर, लेट फॉर द स्कूल एंड वाज पनिश्ड बाय द टीचर. नाउ सो इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस विद द हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, he learned to play violin, to swim and sail. Doesn't make any sense. या थोड़ा inappropriate sound कर रहा है ये. Now what should be the right one? He learned to play violin, to swim and to sail. जब parallel verbs चलते हैं तो उसके साथ preposition लगाया जाता है. Parallelly बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है. तो parallel verbs के साथ हम बार बार preposition लगाते हैं. He learned to play, क्या क्या सीखा उसने? To play violin, to swim and to sail is the right form of the sentence. We cannot say that he learned to play violin, to swim and sail. ठीक है. तो ये एक सेंस नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है. और अगर आप देखें तो थोड़ा साउंड भी ऑकवर्ड साउंड हो रहा है. राइट. इनएप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है. सो वी नीड टू पुट टू बिफोर एवरीथिंग दैट वी स्पीक. ही लर्न टू प्ले वायलिन, टू स्विम एंड टू सेल. सो दिस इज द कंप्लीट सेंस. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, ही केम एंड सैट बिसाइड्स मी. अगेन दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. He came and sat beside me. Now what is the difference between besides and beside? Besides का मतलब होता है इसके अलावा, in addition to something. Okay? और beside का मतलब होता है by the side of, उसके बगल में. तो वो आया और कहां बैठा, मेरे बगल में बैठा या मेरे अलावा बैठा. तो यहां पे जब हमने besides लगा दिया, इसका मतलब in addition to something which is not giving any sense here. Okay, it is making a incorrect sense. Now, so what should be the right sentence? He came and sat beside me. वो आया और मेरे बगल में बैठ गया. He came and sat beside me. वो मेरे बगल में बैठ गया. Right? Next अगर हम देखें, I will revert back to you. Incorrect sentence again. Right one is I will revert to you. Why? क्यों ऐसा ये है? Revert का मतलब ही होता है किसी को रिप्लाई बैक करना. You does not need to add back to it. This is redundant, unnecessarily यूज हुआ है back यहाँ पे. ठीक है. So जब हम revert बोलते हैं कि I'll revert to you, it means I'll reply back to you, I'll come back to you, don't worry. You don't need to put additional back to it. And so that is why here back should not be used with revert. ठीक है. जैसे हम बोलते हैं he is my cousin brother for example. तो कजन का मतलब ही हो गया कि मेरा चचेरा मौसेरा भाई है. वो ब्रदर लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको. ही इज माई कजन. ठीक है. सो वो मेरा भाई है. इन द सेम वे रिवर्ट टू यू. ओके. नो, बैक शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज रिवर्ट इटसेल्फ मींस व्हाट? टू रिप्लाई बैक टू समबडी. नेक्स्ट अगर हम देखें, राज ड्रेसिंग सेंस इज गुड. अगेन दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या होता है? कपड़ा पहनने का तरीका. तो राज के कपड़ा पहनने का तरीका अच्छा है या राज जो कपड़े पहनता है वो अच्छा है? जाहिर सी बात है ड्रेस सेंस उसका गुड है. हम कभी नहीं बोलते ड्रेसिंग सेंस. बहुत बार लोग बोलते हैं ड्रेसिंग सेंस. ड्रेसिंग सेंस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वी ऑलवेज सेज राज ड्रेस सेंस इज गुड. जिस तरह की वो कपड़े पहनता है, जो कॉन्ट्रास्ट कपड़े या मैचिंग कपड़े पहनता है, वो उसकी अच्छी चीजें हैं. उसको मैचिंग कपड़े या वो अच्छी कपड़े पहनता है, मैचिंग के कपड़े पहनता है. बट ड्रेसिंग सेंस का मतलब कपड़े पहनने का तरीका उसका अच्छा है. डजंट मेक एनी सेंस. सो वी ऑलवेज सेज दैट राज ड्रेस सेंस, जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है वो उसमें अच्छा दिखता है और हैंडसम दिखता है, तो उसका ड्रेस सेंस अच्छा है. ड्रेसिंग सेंस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट. बहुत बार हम लोगों ने शादी या पार्टी में सुना होगा, यार उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है.
तो ड्रेसिंग सेंस नहीं होता। ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या हो गया? कपड़ा पहनने का तरीका, आप कैसे ड्रेस हो रहे हो, ये अलग चीज हो गई है। ड्रेस सेंस होगा मतलब जो आप कपड़े सेलेक्ट करते हो अपने लिए किसी खास ओकेजन या पार्टी के लिए, वो अच्छी है, वो आपकी चॉइस अच्छी है, राइट? सो राज ड्रेस सेंस इज गुड, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, अमित डिड नॉट रोट द एग्जाम दिस ईयर। अमित डिड नॉट रोट द एग्जाम दिस ईयर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या होना चाहिए? अमित डिड नॉट राइट द एग्जाम दिस ईयर। जब डिड लगा होता है उसके साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म नहीं लगता है। हमेशा डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वी1 फॉर्म को यूज करते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिड, ठीक है? सो दैट इज वाई डिड नॉट रोट नहीं होगा, डिड नॉट राइट होगा। दिस इज द एक्चुअल सेंटेंस, राइट? सो वी ऑलवेज यूज वी1 फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ डिड, बिकॉज डिड ऑलरेडी इंडिकेट्स द पास्ट टेंस, वो खुद पास्ट टेंस में इंडिकेट करता है। सो दो बार पास्ट टेंस इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस गोज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द ग्रामर। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई प्रेफर कॉफी दैट टी। नो, it doesn't make any sense. I prefer coffee that tea? No. The right sentence is I prefer coffee to tea. ठीक है, मुझे कॉफी ज्यादा पसंद है चाय के बनस्पत, या चाय की जगह मैं कॉफी लेना पसंद करता हूं, ठीक है? सो आई प्रेफर कॉफी टू टी, सो दिस शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट। मैंने एक ड्रीम देखा। यू नेवर सी और सॉ अ ड्रीम, आप क्या अपनी आंखों से देखते हो? नहीं, यू ऑलवेज हैव अ ड्रीम और हैड अ ड्रीम। आपको सपना आता है, आप खुली आंखों से देखते नहीं हो। सो द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, ओके? सो वी कैन से दैट आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। मुझे लास्ट नाइट एक ड्रीम आया, एक सपना आया। आई had a dream. We never see a dream, we always have a dream, okay? Because it comes on its own, it is not in your hand to see a dream, just like we are watching a movie, okay? So watching movie is in your hand, you're watching your favorite movie, but which dream will come to you? It's not in your hand. So I had a dream last night, मुझे एक सपना आया last night. So this is the right way of telling it. Let's see the next one. One of my friend is selected in the IAS exam. Incorrect है, क्या होना चाहिए? One of my friends is selected in the IAS exam. बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त मेरा जो है वो IAS एग्जाम के लिए सेलेक्ट हुआ है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए, ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड होना चाहिए। अक्सर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जब ये यूज करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी या वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू देयर, we use wrong English. One of my friends, see, you don't have only one friend in life, okay? There may be more than 2 3 4 5 6 friends. So one of my friends, मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं उनमें से कोई एक जो है वो कहां गया? मूवी देखने या आईएएस एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो गया। एज पर दिस स्टेटमेंट वी से दैट वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज सेलेक्टेड इन द IAS examination. So this should be, we should always use S with one of my friends. Now, what is your good name? No. दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर दैट वी मेक। अक्सर मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि आपका शुभ नाम क्या है, आपका गुड नेम क्या है। दिस इज रॉन्ग, नेम कैन नॉट बी गुड और बैड, ओके? ओनली इंसिडेंसेस आर गुड और बैड, और एक्सपीरियंसेस आर गुड और बैड। नेम कैन नॉट बी गुड और बैड, ओके? वी कैन जस्ट से व्हाट इज योर नेम इंस्टेड ऑफ गुड और बैड। सी, शुभ का इंग्लिश में क्या होता है? ऑस्पिशियस। सो डू वी से व्हाट इज योर ऑस्पिशियस नेम? वी नेवर से दैट, राइट? It's wrong English. So here also good should not be used. Good की जगह हम क्या बनाएंगे? What is your name? Simple. आपको बोलना है what is your name. Good bad नहीं लगता है इसमें। ये बहुत ही कॉमन एरर है जो हम अपने डे टू लाइफ में फेस करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई सेल्फ आकाश मेहरा, प्लीज टू मीट यू। माई सेल्फ आकाश मेहरा, माई सेल्फ कैन नेवर बी द इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट। मैंने बहुत बार देखा है जब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो माई सेल्फ से बोलते हैं। माई सेल्फ पॉजिटिव प्रोनाउन है, वो कभी भी सेंटेंस को बिगिन नहीं कर सकता है, वो हमेशा बीच में आता है, ठीक है? सो आई एम आकाश मेहरा, यू ऑलवेज से व्हेन यू इंट्रोड्यूस आई एम आकाश मेहरा, ठीक है? मेरा नाम आकाश मेहरा है, प्लीज टू मीट यू। आई एम आकाश और माई नेम इज आकाश मेहरा, प्लीज टू मीट यू, बट यू शुड नेवर से माई सेल्फ। माई सेल्फ इज अ रॉन्ग इंट्रोडक्टरी
sentence. All right. And the last sentence is Rahul wants to withdraw money from the ATM machine. Rahul जो है वो ATM machine से withdraw करना चाहता. Again, this is incorrect. Why? Because ATM itself is a machine. We don't use to add machine to the ATM. Okay. We can say simply Rahul wants to withdraw money from the ATM. ATM का full form क्या होता है? Automated teller machine. खुद ही machine होती है वो. So हम simple बोल सकते हैं राहुल wants to withdraw money from the ATM. राहुल जो है वो ATM से पैसे निकालना चाहता है. Right? So friends, these were some of the sentences which I thought was important because often we use in our day-to-day life, and I think we should make sure whatever we speak with logical things, with grammar rules and regulation, and whatever is appropriate and not redundant. Okay, so these were some of the mistakes, and we did 24 sentences. I hope कि आपका concept कुछ clear हुआ होगा इसके बाद. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और इससे भी एक्साइटिंग वीडियो होगा. सो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड wait for the next video to come. Okay, thank you so much for watching the video. Thank you.